हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, दैट इज़ नॉट कैपेबल और दैट इज़ नॉट मेड इन सच अ वे और दैट इज़ नॉट क्रिएटेड इन सच अ वे कि हम जितना कंटेंट आज के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है. This is one of the main reasons because see, brain has its capacity. Right, it cannot, if you try so then it is going to burst in some or another way. Absolutely. And that comes as a mental health issues. Yeah. Right, so वही हो रहा है और it's just not like आप actively देख रहे हैं. Even passive, in the passive manner also you are all surrounded with technology all around. तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, चाहे वो हियरिंग के सेंसेस से जा रहे हैं, चाहे वो विजुअल सेंसेस से जा रहे हैं. एंड द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर इनोसेंट, स्टिल इनोसेंट, दे आर इन दैट एज वेयर दे डोंट नो ये मेरे लिए सही है या गलत है. So good morning, welcome to this podcast, ma'am. Let's talk education. Good morning, yeah, no one was talking about education on podcast, so I thought, let's start a podcast where we can talk about the education and the reality of education system. As you are working in education system from past many years now, I would love to know about you and audience ko pata chale. And we'll keep this podcast in English so that majority people can understand कि हम क्या बात कर रहे हैं. Yeah. So it's really a good initiative, Akshay, which you have started. Thank you. It's education which is the most important thing we need in life, to run the life, to live the life. Okay, so जीवन ही जब शिक्षा है तो इसके बारे में बात तो करनी चाहिए. और बात भी ऐसे करनी चाहिए कि सबको फील हो कि ये है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है. We have to live. So it's really nice to be here with you on this platform, and I am Anita Gupta. I am principal Raman Munjal Vidya Mandir. It's an initiative by Hero Group, and it was settled in like long back in 92. Right. It's 33 years old school now, and I've been working there for last 28 years. और मैं आपको पता है, वैसे मैं आपको पता नहीं आइडिया है नहीं है, मैं alumni है PCM. Yes. लुधियाना. Yes, I little searched about you, so I came to know that you too have the associations with Munjal group. Right? So not long association, but yes, मतलब मेरा I was a founder student. Okay. So my admission number was 41. Wow. So sector 32 branch जो नया खुला था PCM लुधियाना, I was a student of that. मेरे टाइम पे SD कालिया was the principal. फिर DP गुलेरिया रहे हैं principal. I guess currently he's serving as a principal. I have visited that school. It's wonderful. BCM is wonderful, and we also like it is a setup for the rural development. Okay, right. So basically when we started, so it is at the periphery of Gurgaon. So it's total like rural. Right? जहाँ पर ना लड़कियों को तो एजुकेशन के लिए भेजते ही नहीं थे. So मैंने उस सेटअप में शुरू किया था. Right. So ये वही है जो यूनिवर्सिटी के साथ है जो आपका. So we hosted our one of the event in your campus as well, BML Munjal University में. So I worked with Swati Munjal and Akshay Munjal very closely in that event. Yeah. That's nice. So small world. So, it's a small world. So today I'm interested to know about the mental health, mental education, schools कैसे support कर रहे हैं. तो we will be shooting this podcast around this topic only, where we can talk about mental health because no one is ready to talk about this topic. Taboo है बहुत बड़ा mental health को लेके. If you have pain in your muscle, you go to a doctor. But if you are thinking you are facing some mental issues, but you don't want to go to a doctor because पागल कहा जाता है हमारे कंट्री में उस चीज को. राइट, बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ क्योंकि मैं ये एज एन एजुकेटर ऑल्सो आई फील कि अगर मैं किसी पेरेंट से बात करती हूँ और कुछ हमें मतलब समझ में आता है कि इस बच्चे को कुछ इशू है या लेट अस डिस्कस विद अ पेरेंट, फैमिली के बारे में थोड़ा जानते हैं तो हम सॉर्ट आउट करेंगे. तो पेरेंट्स भी नहीं जानना चाहते, नहीं हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं है, ही इज परफेक्टली फाइन, अच्छा खा पी रहा है, अच्छा पढ़ रहा है एंड ऑल दैट. So mental well-being really is very important, and in this world of you can say too much of competitiveness. So जहाँ पर हम सिर्फ भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि because one after another new things are coming up. Right. So हम अभी एक कैच करते हैं, पता चलता है वो हम पीछे रह गए, दूसरा और आगे निकल गया. तो हमें हर टाइम अपने आप को अलर्ट रखना है. तो उसके लिए नेचुरली अगर बच्चे हैं, अगर हम उनको पढ़ाना है, उनको देखना, तो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में हमें ध्यान रखना होगा. और उसी के अंदर वेलबींग, मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड वो इफेक्ट हो रही है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ नंबर चाहिए, चाहे वो पेरेंट है चाहे स्कूल है,
क्योंकि उनके स्कोर बोर्ड पे नजर आना चाहिए कि मेरे स्कूल का बच्चा टॉपर है, राइट, या मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए, या मेरे राइट, बच्चे का नीट में एडमिशन हो गया, जेई में एडमिशन हो गया. But we need to understand that admissions in such cases may lead to some kind of things which are not accepted. राइट, Means जब वो हो जाते हैं तो as a parent I don't want my child to suffer any kind of a problem, and as an educator I don't want my children to face. So मुझे सारे healthy wealthy बच्चे चाहिए, हंसते मुस्कुराते चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बचपन को देखते हैं तो ऐसा लगता है चीजें तो तब भी थी, कॉम्पिटिटिवनेस तब भी था, लेकिन हम फिर भी फ्री माइंड थे, पढ़ते थे, मस्ती भी करते थे, खेलते कूदते थे, गाते, मतलब सब कुछ करते थे. आजकल बच्चे करते हैं जैसे ऐसे करते हैं, एक दूसरे को या तो इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल को वो जरूरत है, या पेरेंट्स को चाहिए, या एक सोशल नॉर्म है. तो वो एक जो फ्रीनेस है दैट इज फ्रॉम विद इन, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है. वो स्ट्रेस है, स्टडीज का स्ट्रेस है, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन का स्ट्रेस है, या पेरेंट्स को भी दिखाना है मेरा बच्चा इतना होशियार है और इस स्कूल में पढ़ता है, तो मतलब इस स्कूल में डाल दिया, मतलब मेरा बच्चा तो हो गया, या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया. बट ये सिनेरियो में देख रहा हूँ चेंज हो रहा है, बीइंग लिसनिंग फ्रॉम दिस एजुकेटर आल्सो. अगर मैं आज से 10 साल पहले जाऊँ या 15 साल पहले जाऊँ, माई इवन स्कूल वॉज फोकस्ड ऑन यू नो कि हमारे स्कूल में कितने IIT में बच्चे जा रहे हैं, कितने एम्स में जा रहे हैं, यू नो कितने मेडिकल एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं. बट आज के टाइम पे इवन लिसनिंग फ्रॉम यू एज वेल, और भी बहुत सारे एडुकेटर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो एवरीवन इज लाइक कि क्या होता है नीट क्लियर करके या फिर यू नो IIT JEE क्लियर करके. आई गेस ये मार्केट सिनेरियो चेंज होने के कारण ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, बिकॉज नाउ वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो नॉट ओनली बेस्ड ऑन एजुकेशन बट दे बिकम सक्सेसफुल. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सिटी की बात करूं, वन ऑफ द फाउंडर वेरी फेमस नाउ, भावेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओला कैब्स. सो ही इज फ्रॉम लुधियाना, हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एंड क्रिएटेड सच अ बिग वेंचर. और ठीक है वो IIT पास आउट है, बट अगर हम IIT के अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स देखें, रितेश अग्रवाल इज वन ऑफ देम, ओयो रूम्स का फाउंडर, एंड मुंजाज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन ओयो रूम्स. सो कैसे आपको लगता है मार्केट सिनेरियो चेंज होने से थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है सब कुछ, के क्यों ऐसा हो रहा है अभी? मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना सिर्फ 2-3 फील्ड से नजर आते थे, तो अभी थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लाइक काउंसलर्स आर आल्सो कमिंग अप इनटू लाइक, and we are also as school also we are partnering with like career counseling, and so we are giving and showing them that there are so many things, and we have seen even many doctors also they change their profession, like they become IAS officers. So profession is changed. So like I too have an interaction with my own student, like he did you can say the MBBS from AIMS, and then he passed civil services and he became an IAS officer. So it's good, like you have the first hand experience of, but then I always question, Menka, you have wasted one seat, maybe some other wanted to be just a doctor. Yeah. So if you wanted to be like in this role, you should have left that seat for that person. So like because many professions are coming up, and there is one more thing which is startup. So startup has come in last 5 years, I think, after the COVID, or during that COVID time, we are so much into technology, and we have understood so much what is happening around the world. So that has made the difference in understanding that this is just not the profession only, but there are many other things which a child should be, and that depends upon the capability of the child. So for that, the students, parents and the educators, that this triangle has to be complete. They have to sit together to understand the caliber of the child, because see, all the 5 fingers are not the same. Absolutely. Okay, and they can never be same. Right. One size, the education system is actually based upon one size fits all. But we all know one size doesn't fit all. It varies from person to person. So when I cannot fit my feet into somebody else's shoes, so how can I think that I am fit for that job which is not meant for me? Right. So I have to analyze, and that analysis I have to develop into the child also, that you have to think what suits you the best, what is your caliber, what is your passion, because passion is what can make you anything in life. Absolutely. Passion and vision are important factors. Very important, yeah. Right. So एक mental health के ऊपर अगर हम बात करते हैं, so what are the factors जो आज के टाइम पे mental issues या mental health के problem बनते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि because you deal with so many parents and so many students, आप बच्चों के साथ deal करते हैं. So basically thinking it is the scorecard, the result, the lot of pressure of getting
100% marks, 90% above, 95, 96. This has to be known, that has to be known. So it's the pressure, and that pressure comes from the society and maybe from the school also. I will not deny, because schools have also become competitive. And the parents have started, or the society has started judging the school, seeing the result, not on the basis of what actually the school is providing. Because it's just not about infrastructure, it's about the kind of quality of teachers, the students, the dealing of the teachers with the students, the communication with the parents. So इतनी सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. तो ये जो चीजें जब नहीं मिलती हैं तो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर है कि नंबर का प्रेशर है. मेरे बच्चे को सारे सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम जो है वो 10 तक तो हमें 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं. स्किल सब्जेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज एक्स्ट्रा, बट वो 5-6 तो पढ़ने हैं. चाहे अभी हमें एनईपी की वजह से या पहले से भी हम लोग इंटीग्रेट भी करते थे सब्जेक्ट्स को, बट वो उतना डाइवर्सिफाइड है, चीजें इतनी सारी हैं कि वो कितना हो पा रहा है, रियलिटी में कितना हो पा रहा है. क्योंकि फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि बच्चा ऑटोमेटिकली ये चीजें अडॉप्ट करे, बट वो नहीं हो पाता तो वो प्रेशर बिल्ड होता है, स्ट्रेस बिल्ड होता है. तो स्ट्रेस से मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं. तो ये है. फिर रिजल्ट, फिर एग्जाम्स भी डिफरेंट तरह के हैं. अभी आजकल एग्जाम सिस्टम की बात करें तो दे हैव स्टार्टेड टेस्टिंग ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग आल्सो, बट वो जनरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बच्चे को शुरू से उस तरह का माहौल देना होगा. हमें उसको बुकिश नहीं बनाना है. राइट. सो विच इवन एनईपी इज टॉकिंग अबाउट, एनसीएफ में भी वो सब चीजें आ गई हैं कि हमें कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे लेना है, किस तरह से उसको वैरायटी देनी है, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनाना है, हैंड्स ऑन बनाना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैव टू बी मोर इंट्रोड्यूस्ड. क्योंकि ये जब होगा तो शायद जो मेंटल प्रेशर जो इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों को या बिल्ट हो रहा है वो थोड़ा कम हो पाएगा. एक और भी चीज है, शायद कहीं हम डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं, पेरेंट बच्चे से, बच्चा पेरेंट से और एजुकेटर से भी. सो कहीं ना कहीं मे बी इट इज बिकॉज ऑफ सी एवरीथिंग हैज इट्स प्लस एंड माइनसेस, राइट. सो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बहुत सारे बेनिफिट हैं, तभी हम लोग लाइक वी आर वर्ल्डली कनेक्टेड. आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम एबल टू मेक और सेंड माय मैसेज टू द सोसाइटी. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. सो बट उससे क्या हो रहा है कि अभी हर हाथ में मोबाइल है या टेक्नोलॉजी है, तो उनको लगता है गूगल बाबा है. मैं भी इस पॉइंट पे आने वाला था. आई वाज रीडिंग समवेयर कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, दैट इज नॉट कैपेबल और दैट इज नॉट मेड इन सच अ वे और दैट इज़ नॉट क्रिएटेड इन सच अ वे कि हम जितना कंटेंट आज के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी आवरसेल्व्स एज वेल, मैं अगर अपने आप को भी देखा हूँ, मैं बहुत, अगर मैं अपना स्क्रीन टाइम देखूँ, मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे है हर रोज़ का. जस्ट इमेजिन कि मैं 6.5-7 घंटे या तो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों से, या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन. मतलब कितना कंटेंट मेरा ब्रेन ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो ब्रेन इज़ रेडी टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ कंटेंट. और जस्ट इमेजिन अगर मुझे ये चीज़ पर्सनली इस एज में हैम्पर कर रही है, मुझे पता है कि दिस इज़ समवेयर हिटिंग माई मेंटल हेल्थ. कहीं ना कहीं पे आप थकावट माइंड में रहनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज आप इतना कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हो. सिमिलरली बच्चे जो हैं वो हमारे से ज़्यादा कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो डू यू थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द reason? This is one of the main reasons, because see, brain has its capacity, right? It cannot, if you try, so then it is going to burst in some or another way. Absolutely. And that comes as a mental health issues, right? So वही हो रहा है. और it's just not like आप actively देख रहे हैं, even passive, in the passive manner also you are all surrounded with technology all around. तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, चाहे वो हियरिंग के सेंसेस से जा रहे हैं, चाहे वो विजुअल सेंसेस से जा रहे हैं, बट यू आर इन दैट सिस्टम, यू आर ब्रीदिंग इन. सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, यू हैव टू हैव द फोकस ऑफ हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस, कैसे इसके इम्पैक्ट को अपने ऊपर रोकना है. तो उसके लिए तो सबको काम करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आप अक्षय जो आप कह रहे हैं कि इट्स actually impacting every human being, and the children, because they are innocent, still innocent, they are in that age where they don't know ये मेरे लिए सही है या गलत है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं. they are teenagers. अब मैं देखता हूँ कि even these days schools are using technology because अब पार्ट बन गया है. I understand, because आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं सिखाओगे बच्चों को तो बच्चे ग्रो कैसे करेंगे. और that's a one way where they are watching smart screens, वो भी कहीं ना कहीं पे कंटेंट ही ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे. एंड ऑन द अदर हैंड शाम दोपहर को वो घर जाते हैं,
उनके मदर्स पेरेंट्स मैंने देखा है, आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गोइंग टू बी एज अ पेरेंट, अभी वी आर जस्ट ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, तो अभी हम भी पेरेंटिंग को बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीन पकड़ा देते हैं फ़ोन की ताकि खाना खा ले, और अपने बच्चों को टाइम अपने आप से डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं खुद से स्क्रीन देके। और जब उनको बोला जाता है कि आप एक छोटे बच्चे को स्क्रीन क्यों दे रहे हो, तो उनका आंसर होता है कि ये खाना नहीं खाएगा और ये तंग करता है। बट आप अवॉइड नहीं कर रहे, आपको लगता है कि स्कूल में ये पेरेंट्स को बुला के एडुकेट करना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग विद द फ्यूचर एंड व्हाट यू आर डूइंग विद द फ्यूचर ऑफ कंट्री एज वेल। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करने के लिए, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, आई टेल यू, बिकॉज पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब साथ में होते थे, तो पता नहीं चलता था, बच्चे अच्छे से सबसे इंटरेक्ट कर पाते थे, शेयर कर पाते थे, घर जाके भी उन्होंने बात करनी होती थी, आज हमने स्कूल में क्या किया, या फ्रेंड सर्कल में क्या हुआ, या घर में क्या हो रहा है, और उनको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली होने से टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ये इम्पैक्ट आया है पेरेंट्स के पास टाइम में। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके दोनों के पास ही टाइम नहीं होता। और मेरा तो ये बहुत इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इस तरह के पेरेंट्स आते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं वहाँ पे, कॉर्पोरेट्स हैं, और या फिर वो बिल्कुल विलेजर्स हैं, वो कहते हैं मैम हमें ना तो पढ़ाना आता है, ना हम बात क्या करें, या वो जो है मैम हम तो रात को आते हैं ड्यूटी करके, तब तक बच्चा सो जाता है। सो वो जो टाइम जो पेरेंट को देना है बच्चे को, वो नहीं मिल पा रहा है, और वो डिस्कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। उस डिस्कनेक्ट की वजह से इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर ज्यादा हो रहा है। पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो मांग रहा है हम उसको दे रहे हैं, इसको टीवी रिमोट सब कुछ दे रखा है इसको। सो रिमोटली भी काम कर रहे हैं कई पेरेंट्स, बट फिर भी वो रिमोटली भी काम कर रहे हैं तो भी वो ऑक्यूपाइड है अपने काम में, घर में होके भी कई बार वो बच्चे के लिए नहीं है। तो ये जो गैप जो हो गया, इसके लिए स्कूल्स ऑफ कोर्स दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, अर्लियर आल्सो दे यूज्ड टू। तो पेरेंट्स को हम इनवाइट करते हैं, पेरेंट्स इंटरेक्टिव मीट रखते हैं, इवन हम बाहर से काउंसलर्स या अच्छे स्पीकर्स को बुला के भी पेरेंट का इंटरेक्शन करवाते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजीज। सो पेरेंटिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, इट हैज टू बी लर्न्ड। पहले कहते थे ना खून में आ जाती है पेरेंटिंग, लेकिन अभी जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमें पेरेंटिंग भी सीखनी बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग बहुत चेंज हो चुकी है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पर्सनली बीइंग अ पेरेंट नाउ। मेरे पेरेंट्स का जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है, देयर इज अ ज़मीन आसमान का फ़र्क। वो कहीं ना कहीं पे दिख रहा है मुझे भी कि द वे दे यूज्ड टू नरिश अस, और जैसे हम अपने बच्चों को करना चाह रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क जनरेशन गैप की वजह से भी है, ऑफ कोर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज एज यू मेंशन न्यूक्लियर फैमिलीज, कम टाइम, उस चीज़ों की वजह से भी बहुत फ़र्क है। तो बट इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो आ रहा है वो बच्चों की हेल्थ पे आ रहा है, राइट? बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आ रहा है। मतलब जो मुझे समझ में आता है कि हाफ ऑफ द डे किड्स स्पेंड देयर टाइम इन स्कूल्स, तो स्कूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसको अवॉइड करने के लिए या फिर इसको बेटर बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल को, एज अ स्कूल को क्या मेजर्स लेने चाहिए कि उनका जो मेंटल हेल्थ है, इवन फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम है, अब मुझे लगता है कि स्कूल बहुत बड़ा, एज आई मेंशन, कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए। ऐसा क्या स्कूल को मेजर्स लेने चाहिए कि बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बोले आई डोंट नीड मोबाइल नाउ, आई डोंट नीड टू वॉच टीवी, सो हमने थोड़ा सा ये काम शुरू किया था, जैसे जब कोविड आया तो हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया था, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने वी हैव स्टॉप्ड गिविंग एनी वर्क ओवर फोन, या घर में उनको किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने पर इसको हम थोड़ा अवॉइड करने लग गए हैं, हम नहीं देते हैं। हम उनको काम इस तरह का देते हैं जो उनको बुक्स या पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करके करना है। तो दैट इज प्रोजेक्ट भी जो देते हैं वो ऐसे देते हैं जो कि सस्टेनेबल टाइप के प्रोजेक्ट, जिसमें उनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी, जिसमें उनको मटेरियल यूज करना है विच इज एट होम, या लोगों से बात करनी है जैसे सोसाइटी में जाके बात करनी है, कुछ इस तरह से। तो इसमें एक ये काम हो सकता है जो हम कर भी रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम स्कूल में भी टेक्नोलॉजी को उसी वक्त यूज करें, जैसे हमने अपने लैब के पीरियड्स अलग कर दिए हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू टीच through the different, because this is so much of learning thing which we have to share with the students, but then we have to integrate it with like sports periods, we have to integrate it with club periods, तो वो हम करते हैं, hands on activity करते हैं जिसमें
कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है जिसमें वो अपना बस घुल मिल के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के या तो कुछ चीज आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई चीजें बना रहे हैं, वो भी जो मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ, या कुछ कुकिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं इकट्ठा। तो इस तरह की चीजें हम प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, या मैंने हम एक्चुअली आई एम दिस इनटू क्वालिटी सर्कल आल्सो, सो व्हिच वी इंट्रोड्यूस लॉन्ग बैक 25 years back, राइट। सो उसमें जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रॉब्लम लाइक एनालिसिस, skills of how to deal with such kind of issues, right? So even students made a study on mental well-being also, like stress, right? So what are the different reasons of stress, right? So वही था कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो उसको फिर कैसे समझना है, या आपस में कैसे पेयर ग्रुप का प्रेशर है तो उसको कैसे डील करना है, अगर मार्क्स लेने हैं तो वैसे कैसे करना है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इस तरह के 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं मेरे, ये सपोर्ट करते हैं, जो मैं बच्चों को ओके बच्चे दे कम विद सम प्रॉब्लम, अच्छा मैम ये है कैसे करें, सो फिर मैं बताती हूँ ओके यू टेल मी ये प्रॉब्लम क्यों आई है, अच्छा क्यों इस वजह से, अच्छा इसके पीछे और क्या रीजन थे। तो ऐसे करके हम वाई एनालिसिस करते हैं बच्चे के साथ। I spend time with the kids, my teachers also. It's just not like we are just speaking about the books. Yeah. So when we say education and when we talk about mental well-being, they have close relations. Right. And in that one has to give that open environment. We have to even create our teachers also for this program. Right. So this tells me like even our teachers had gone to that extent that during COVID they were in connect with the COVID patients one-to-one. Right. They used to speak to them and they felt so happy and healthy. So that we have continued even afterwards also with our own students, even the parents. Right. So during school time, after the school time, in the evening also, if any parent wants to speak about the child, or even they are so free that they talk about their own problems also, and they like to discuss the solutions and how to deal with. Because जब आप किसी के साथ brainstorm करते हो या अपना problem discuss करते हो, you get a solution sometime. Yes, and it's both the ways. It's not that I am benefiting. Even I also get benefited many times, because when they share, I also analyze, and if I have some experience, I share with them. So the same when I say I can be I myself, I can be my teacher, I can be a parent, right. And even we invite the parents. Parents play a role. So what we have started doing, parents as partners, we have started. Like we invite them in our school for different reasons. Like sometimes we invite them as the judge. उन्हीं के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के लेवल, जैसे अगर 6th क्लास के पेरेंट को हम इनवाइट करें तो वो जो कंपटीशन या जो भी चीज है परफॉर्मेंस है दैट इज ऑफ 6th क्लास ओनली। ओके, ऐसे अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम जैसे मदर्स डे अभी गया तो हमने मदर्स हम चेंज करते रहते हैं हर साल, तो इस बार हमने नर्सरी और 4th 5th की मदर्स को बुलाया, तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस किया। So that bonding, it was seen, and that is what we want to create. तो कोई भी फेस्टिवल आता है, नवरात्रि आते हैं तो हम अलग बैच को बुलाते हैं, ऐसे करके ऐसे कोई भी उनका हम ना स्किल सेट लेके रखते हैं, हम एक फॉर्म भरवा लेते हैं सब पेरेंट्स से कि उनकी किस किस चीज में स्किल है, राइट। तो हम उसी उनकी कॉम्पिटेंसी के बेस पे उनको फिर इनवाइट करते रहते हैं, कभी ग्रुप में इनवाइट करते हैं, कभी हम इंडिविजुअल इनवाइट करते हैं, कभी हम उनको लेक्चर देने के लिए इनवाइट करते हैं। तो उसमें आई फील कि इससे जो कनेक्टिविटी है या बॉन्डिंग है बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट एंड इवन द पेरेंट एंड द स्कूल इंक्रीजेस, एंड उससे शायद बच्चे भी खुश होते हैं, और वो जो मेंटल स्ट्रेस जो इंक्रीज होता है वो somehow I think we are able to dilute that to some extent, क्योंकि इससे मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं, यही देना चाह रहे हैं कि this bonding, this triangle needs to be very strong if we really are looking at the child's well-being, right? क्योंकि हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, लेकिन क्या हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स जानते हैं? या हम उसको भी हमने लिमिट कर दिया कि हमारे लिए होलिस्टिक पैरामीटर का मतलब ये है कि बच्चे के इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस सब में इतने नंबर आने चाहिए, right. या फिर ठीक है बच्चे ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, right. लेकिन उन चीजों के साथ सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं है, वहां पे उसका पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कैसा था, उसका जो कॉम्पिटिटिव नेचर है वो कैसा है, वो जेलस है, एनवियस है, या ही इज प्लेफुल, ही वांट्स टू प्ले विद द कंपटीशन, एंड दैट इज अ हेल्दी कंपटीशन, दैट्स नॉट एज अ स्ट्रेस।
So these are the pointers which are very important, which we need to tell our parents, because see हमें खुद को क्लियर होना है, पेरेंट्स को क्लियर होना है, तभी हम बच्चों को क्लियर कर पाएंगे। राइट। कई बार तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज्यादा समझदार हो गए हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, उतनी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास नॉलेज है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन का जो गैप है, विच इज स्किल सेट, which needs to be developed with the children so that they can face, they can brainstorm what is forcing them to have that kind of a stress and pressure, and then they can discuss. That kind of free environment is very important, कि बच्चों को प्रेशर नहीं है और वो कभी भी जाकर बात कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑफिस ऑल टाइम ओपन है, fixed hours is only meant for the diary. Anytime anyone can come and see me, and as so far as I am concerned, मैं का कोई वेट नहीं करेगा मेरे लिए। मैं अगर एक पेरेंट ऑलरेडी बैठा है या एक बच्चा ऑलरेडी बैठा है, then that parent has to wait. But if I am indulged in some other work or meeting, so I try avoiding and giving first preference to the child or this thing, which is very important, because office या प्रिंसिपल एक फियर या टीचर एक फियर नहीं होना चाहिए। True. क्योंकि फियर से हम फोबिया क्रिएट कर रहे हैं, और जिससे हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम जान ही नहीं पा रहे कि बच्चे को एक्चुअली में चाहिए क्या। जैसे हमारी कंट्री में हमने पुलिस को एक फियर बनाया हुआ है, जबकि पुलिस इज फॉर सेफ्टी, और जबकि हम डरते हैं कि अरे हम जाए तो ये हो जाएगा, व्हिच इज नॉट। साइबर क्राइम कितना हो रहा है, हम कितना डर, अरे हमें जब तक हम ओपनली बोलेंगे बताएंगे नहीं, अगर हमारे साथ कोई इश्यू हो भी गया है, सी फेक थिंग्स आर हैपनिंग एवरीवेयर, सो व्हाई शुड वी बी स्केयर्ड आउट। हमें ओपनली बोलना है। तो ये भी होता है, तो मैं बोलती हूँ, मैं क्या बोलूं, आके बताओ। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर फोटो भी डाल दी, मैं यू जस्ट कम एंड स्पीक, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, देयर साइबर सेल्स आर देयर। मैं तो इमीडिएटली फोन कर देती हूँ, रक्षी टंडन जी को भी फोन कर देती हूँ कि मैं ये हो रहा है, बता दीजिए कैसे कैसे करना है। सो मैं जस्ट बी ओपन अबाउट, मींस openness, mindfulness is very important. हमने जो बहुत सारे डिफाइंड रोल्स को फेयर बना रखा है ना, उसको फियर को हटाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारा जो स्पोर्ट्स पीरियड होता था ना, वो वीकली वंस होता था। सो व्हेन वी यूज्ड टू गो आउट इन बास्केटबॉल ग्राउंड, और हम मतलब हमारे पीटी टीचर होते थे, और बट मुझे वो डिस्कनेक्ट क्या फील हुआ, मैं आज कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, और मुझे कोई भी स्पोर्ट्स ना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाई। आई एम द पर्सन हु डोंट वॉच क्रिकेट मैच, मतलब लोग सुन के हैरान होते हैं, क्रिकेट नहीं देखता, तो मुझे नहीं पता किसी क्रिकेटर के बारे में। ठीक है, विराट कोहली आई नो बिकॉज बहुत फेमस पर्सनालिटी है, महेंद्र सिंह धोनी आई नो बिकॉज फेमस पर्सनालिटी है, सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है, बट इफ यू गो इन डेप्थ कि कौन अच्छा बॉलर है, कौन अच्छा फील्डर है, कौन अच्छा क्या है, मुझे नहीं पता। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा स्पोर्ट्स के साथ कनेक्शन ना बनना इज अ रीजन ऑफ स्कूल, बिकॉज हफ्ते में एक पीरियड होता था, पूरे स्कूल में एक ही पीटी टीचर होते थे, जो सीनियर पीटी टीचर थे, जो 6th से 10th ग्रेड को पीटी करवाते थे, और कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में। क्या आज सेम सिनेरियो है स्कूल्स में बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स? It's changed. Okay. It's totally changed. Because school also are looking forward for this thing. Even the parents also want sports. Children have a lot of interest in sports. They won't believe I have 9 PTIs. I have the experts, the coaches, because they want, and we have a beautiful international ranking ground, okay, right, with everything. And sports is actually very important. मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड ऐसा है जहां बच्चा फ्रीली खेलता है, right, और वो गेम खेलता है जो उसको अच्छी लगती है, फोर्सफुली नहीं। सो जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि हमने बहुत इसको फ्लेक्सिबल बनाया है, और इट जस्ट नॉट वन पीरियड डेफिनेटली। देखो, हमें सारी चीजें मैनेज करनी है सिस्टम के अंदर, तो पीरियड तो गेम्स का पीरियड तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक 0 पीरियड हमारा हर रोज होता है। वो 0 पीरियड हमने बच्चों से उनके इंटरेस्ट के हमने फील्ड ले लिए हैं। तो जो फील्ड जो स्पोर्ट्स में भी, किस में, कोई कराटे में है, कोई बैडमिंटन में है, कोई बास्केटबॉल खेलना चाहता है, किसी को फुटबॉल खेलना है, किसी को क्रिकेट खेलना है, तो मेरे पास 10 स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं स्कूल में, और सब पैरेलल चलते हैं, स्केटिंग, सब कुछ, मतलब हर रोज बच्चा जाता है, स्पोर्ट्स खेलता है, जाता है, क्योंकि मेरे कोचेज हैं सबके अलग अलग,
और बच्चों को मैंने कहा देखो आप खेल सब गेम सकते हो लेकिन स्किल तो करनी पड़ेगी ना किसी को, किसी एक को तो सेलेक्ट करो, हमारे पास टाइम लिमिट है। आप ऐसे कर सकते हो 6 महीने एक गेम खेल लो, देन इफ यू वांट टू चेंज यू चेंज इन द सेकंड सेमेस्टर या यू चेंज नेक्स्ट ईयर, तो कुछ तो स्किल आएगी ना। हमारे तो 0 पीरियड में भी पढ़ाई होती थी। अच्छा देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पढ़ाई उन बच्चों के लिए होती है जो बहुत एवरेज बच्चे हैं ना, तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर वीक है तो उनको हेल्प किया जाता है, हम देते हैं एक्स्ट्रा क्लास वो 0 पीरियड में। लेकिन उसमें भी मैं देखती हूँ अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ प्लीज जाने दो। मैं कहा एटलीस्ट उसका जो ये इंटरेस्ट स्पोर्ट्स वाला है ना, शायद ये इसको हेल्प करेगा एकेडमिक्स इंप्रूव। क्या ये सॉफ्ट कॉर्नर आपको लगता है सारे प्रिंसिपल्स में आ चुका है अब कहीं ना कहीं? मुझे लगता है मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकती, बट 60 to 70% आई थिंक द पेरेंट्स हैव आल्सो, द प्रिंसिपल्स हैव आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, क्योंकि मैं देख रही हूँ स्पोर्ट्स को लेके है एंथ्यू है, और बहुत सारे अब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। अगेन वो कंपटीशन वाली फीलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब मैं जब बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना क्वालिटी सर्कल का एक बार मैं अपनी टीम को नेपाल लेकर गई थी, राइट, तो एंड वी वर लाइक द बेस्ट। सो और कंपटीशन होता है वहां पे भी, जैसे स्किट का होता है, केस स्टडी का प्रेजेंटेशन होता है, डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, डांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सब में अच्छा था। लेकिन उन्होंने कहा कि लेट अस डू वन थिंग बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज कम टू लर्न समथिंग and every child has prepared, let us not make it competitive, let's not declare first, second, third, let us keep standard for everyone. So that and if you remember in education system also this has started when we started giving grades, but फिर कहीं ना कहीं आ जाता है कि 90 से 100 तक स्केल सबका सेम कैसे हो सकता है। लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा ये भी होता है कि उनमें का ये क्या गारंटी है कि जो बच्चा 100% ले रहा है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो स्कोरिंग के साथ आप मैच नहीं कर सकते। वो दैट कैन बी पॉसिबल कि उसका हार्डवर्क की वजह से उसने इतना अपने आप को प्रिपेयर किया, बट ही वाज फोकस्ड फॉर दैट थिंग करिकुलम एंड ही वाज एबल टू स्कोर दैट, बट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्डली विजडम he is not that wise to cope up with other things of life, right? So ये बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट्स जो है, एंड अभी तो स्पोर्ट एनईपी ने स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड करिकुलम भी बनाया है, तो हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट हर सब्जेक्ट का बनाया, तो हमने कोई सब्जेक्ट तो हम उनको कहते हैं जैसे अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं तो मैथ्स की एक्टिविटी वैसे फन वे में, तो सोचो कि मैथ्स का कौन सा कॉन्सेप्ट आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में उसको कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट नॉट, तो जहां बात कर रहे थे कि पहले एक ही होता था, अभी एक तो नहीं है, अभी 4-4, 5-5, 10 आपको मिल जाएंगे, 4-5 तो रेगुलर मिलेंगे, फिर कोच हायर करने शुरू कर दिए हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जैसे या आवरली बेसिस आते हैं, दे टीच द स्पेसिफिक थिंग। बट इसके अलावा एक और जो चीज चेंज हो रही है आजकल, वही हो रही है कि जो सब्जेक्ट टीचर्स भी हैं उनको भी इंटीग्रेट करना है, जैसे मैथ्स को स्पोर्ट्स के साथ, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई है, right. इंग्लिश में भी हो गई है। अब जैसे इंग्लिश में तो बहुत सारी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश या हिंदी या एनी लैंग्वेज को तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, इवन आप स्पोर्ट्स, डांस और म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेट करते हो। मैंने तो हमने पूरा अपना प्रोग्राम भी किया था उसके ऊपर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज फ्री ऑफ anything, any issues, the children are. कोविड में इतना चेंज आया एजुकेशन सिस्टम में, एवरीथिंग टर्न इनटू ऑनलाइन एजुकेशन, और मैंने देखा कि जो बच्चे स्कूल एजुकेशन को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे थे, स्टिल दे आर एबल टू लर्न अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। उस टाइम मैं एक स्कूल इमेजिन करता था कि उस स्कूल का नाम मैंने अपने आप से दिया था रियल स्कूल, असली स्कूल, आई वाज इमेजिनिंग अ स्कूल जहाँ पे कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं है, कोई आईसीएसई बोर्ड नहीं है, कोई स्टेट बोर्ड नहीं है, एंड एवरी सब्जेक्ट इज अ रियल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइंग की जगह ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे बच्चे को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाए, साइंस की जगह रोबोटिक्स सिखाई जाए, मैथ्स की जगह कुछ ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पे वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है, पाइथागोरस थ्योरम, अभी मेरे से कोई पूछे कहाँ इम्प्लीमेंट करी पूरी लाइफ में आपने, तो देयर इज नो आंसर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, आंसर नहीं है उसके हमारे पास। हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं, मुझे याद है जो मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, मुगल्स आए इंडिया में लूटा चले गए, पारसीज आए इंडिया को लूटा चले गए, ब्रिटिशर्स आए
इंडिया को लूटा चले गए, तो मेरा कंट्री तो लुटता है, यू नो, दैट थॉट स्टक इन माय माइंड, बिकॉज बचपन में वो चीजें वो याद रहती है ना जो थोड़ा नेगेटिव अपील करती हैं आपको ज्यादा। सो मैं सोचता हूँ कि हिस्ट्री शुड बी अबाउट मे बी धीरू भाई अंबानी, कि कैसे उन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया, यू नो, बिकॉज दैट गिव्स अ रियल लर्निंग एंड रियल नॉलेज। इट कैन बी अबाउट रतन टाटा केस स्टडी, यू नो, कैसे टाटा ग्रुप बना, बिकॉज इवेंचुअली वो भी हमारे पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। अब मैं सोचता हूँ भगत सिंह के बारे में, आई लर्न अबाउट भगत सिंह फ्रॉम मूवी। मेरी हिस्ट्री की बुक में भगत सिंह के बारे में बहुत छोटा चैप्टर है, यू नो, जबकि भगत सिंह, बहुत सारी न्यूज देखता हूँ मैं, उनको टेररिस्ट भी बोला जाता है, बहुत सारी न्यूज देखता हूँ उनको, यू नो, देशभक्त बताया जाता है। तो रियलिटी क्या है वो कहाँ से पता चलेगी, बिकॉज दैट इज अ रियल हिस्ट्री जो किसी ने ना एक्सप्लोर ही नहीं करी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था हिस्ट्री में, वो आज तक चेंज नहीं हो पाया। सो ये कैसे चेंज हो सकता है सिस्टम, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स मेजर्स ले रही है, दे आर टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड नाउ, दे वांट टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, बट बहुत डेप्थ है एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, बहुत गट्स चाहिए, बहुत ज्यादा। इसलिए अभी देखो ना, ये वाली जो पॉलिसी भी आई है, after how many decades it has come, almost, and still we are like into implementation of the same. So ये जो आप बात कर real and real life, it's the same way. हम जब रील में देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं, हम अगर विलेज रील में देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में जाते हैं तो लगता है कि हम कहाँ आ गए। वो वैसे वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो नहीं हैं, बट क्या वो एक्सेसिबल हैं, क्या वो अप्रोचेबल हैं? तो यही एजुकेशन का है। तो जो आप एक्सेसिबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट नीड्स द रिफॉर्म। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। मैं कई बार देखता हूँ, इफ आई आस्क 100 पेरेंट्स, क्या आप अपने एजुकेशन सिस्टम से खुश हैं? आउट ऑफ 100 विल से नो, बट नो वन इज रेडी टू चेंज इट। तो ये तो आपने भी कह देना कि मतलब ये खराब है, लेकिन मैं क्यों करूं, मेरा पड़ोसी करेगा। घर के आगे कूड़ा है, वो मुझे भी बॉदर कर रहा है, एक नाला है, वो मुझे भी बॉदर कर रहा है, बट मैं क्यों एफर्ट करूं इसको ठीक करने का, मेरा पड़ोसी करेगा। सो जब तक ये मेंटेलिटी एंड एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना कि मुझे करना है, गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स पार्ट, ठीक है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट इवन प्रोटेस्टिंग, आई एम नॉट इवन रेजिंग माय वॉइस। तोड़फोड़ करना इज नॉट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होता है कि अभी दिस रिमाइंड्स मी, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द नेम ऑफ, मैं फेसबुक पे मैं पढ़ रही थी, एक सीए का वो आया हुआ था वर्जन, तो उसने कहा कि व्हेन ही वाज डूइंग सीए, तो एक चैप्टर में उसको लगा कि ये सारे पॉलिसी जो इसमें मेंशन है ये सारा गलत है, एंड ही अप्रोच्ड द एजेंसी लाइक सीए का जो वो करती है, ICAI जो भी है। सो बताया कि इसमें यही है, कहते ठीक है, यू राइट द चैप्टर एंड गिव। कहते मैंने मोर देन 100-200 पेजेस का पूरा लेसन लिखा, एंड with 1 or 2 corrections it was accepted. So that is the change. किसी ने इनिशिएटिव लिया ना, initiative we need to take if we want some change. अगर हमें कुछ कहीं गलत लग रहा है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। ये नहीं कि अरे यहाँ कूड़ा पड़ा तो है, अगर मैंने भी डाल दिया तो क्या होगा, नहीं, अगर मैंने नहीं डाला तो हो सकता है मुझे देख के 4 और नहीं डालेंगे वहां पर, and I can stop, and this I have seen. See, we are the same people, but it's very sad to see that we behave differently when we go abroad. Absolutely. But when we are here we behave like हमारी तो हमारी ही जमीन है, हमारी ही धरती है, हमारा ही देश है, और हमारा ही एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें ही तो एफर्ट करने हैं। हम क्यों दूसरे पे डाल दें? और मेरा ही बच्चा है तो मुझे एफर्ट करने हैं, मेरा स्कूल है, मुझे देखना है, मैं क्यों देखूं कि वो क्या कर रहा है, मैं देखूं कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब ये सोच बदलेगी, ये सोच बदलने की जरूरत है, और इस पे एक्शन करने की, इट्स द टाइम फॉर एक्शन। लाइक वी कीप टॉकिंग, अब हम जिस तरह से टेम्परेचर भी चल रहे हैं, हम बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन में भी वही सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हम लोग ना क्रिटिसाइज करो, लेकिन विद एक्शन। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि आप खुद तो अपने ड्राइंग रूम में कंफर्टेबली बैठे रहो और वहां से खूब डायलॉग मारते रहे, लेकिन बाहर कुछ आके कुछ नहीं करना। सो वो वैसे नहीं चलेगा। अभी नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, अनलेस एंड अनटिल one does it, it happens. अगर वो नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो
प्रपोज करना होगा, हमें उस पे एक्शन करके दिखाना होगा, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। उसी से हमारे बच्चे भी स्ट्रेस करेंगे। आई थिंक स्टार्टअप शायद एक यही रीजन है, आजकल जो बच्चे हैं वो क्यों चेंज कर रहे हैं अपने प्रोफेशंस। वो कुछ शुरू करते हैं मे बी विद द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, या अच्छा स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो तुम्हारे तो ये स्ट्रीम फिक्स है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जब वो 3 4 5 साल वो पढ़ लेते हैं, इवन 2 साल के बाद भी उनको रियलाइज होता है नहीं ये मेरा पैशन नहीं है, आई एम गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, मुझे कुछ और करना है और मैं अब कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे याद है मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसका म्यूजिक वाज हिज पैशन, बट पेरेंट्स चाहते थे कि वो अच्छे से पहले अपनी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में करे। एंड ही टोल्ड मी वेरी क्लियर कि मैम मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूंगा एंड फिर मैं अपना भी सपना पूरा करूंगा। सो इसका मतलब ही अंडरस्टूड द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट तो किया ना, बिकॉज ही इज एबल टू मैनेज बोथ द थिंग्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है एंड विदाउट एनी टेंशन दे आर एबल टू परस्यू देयर ओन ड्रीम्स एंड दे आर एबल टू इवन फिट वेल इन द सोसाइटी वेयर द पेरेंट्स had some expectations. सबसे बड़ा मेंटल इशू तो यही है जो पीयर प्रेशर है, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई केम ऑन दिस प्लैनेट आई हैव माय ओन इंडिविजुअलिटी, मैं खुद के लिए आया हूँ और खुद की इंडिविजुअल मेरी है, जो स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्शन है हमारी कंट्री का। मेरा खुद का पर्पस है और मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। पेरेंट्स इम्पोज करने में लगे हुए हैं कि आपको ये करना है, आपकी लाइफ में ये करना है, और मैं ये देखना चाहता हूँ। अगेन जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमारा पैशन भी ट्रांसफर हो गया, अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। यू नो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इशू है, जो बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है। मेरी फैमिली में मेरे कजन्स की अगर बात करूं, इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है, उनको भी रियलाइजेशन नहीं है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी रियलाइजेशन नहीं है। मेरे कजन्स अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स वांट टू सी देम, यू नो। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं कभी कि हमने इनको बोला है, बट बचपन से उनको बताया गया है कि आपने सीए बनना है, आपने बड़े होकर सीए बनना है, आप सीए बन के ये कर सकते हो। उनके माइंड में वो बनाया गया है। जब वो आपने कल्चर ही ऐसा क्रिएट कर दिया, अब मेरा एक कजन है वो सीए नहीं बन पाया, बट वो कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हुआ है उसका, जो मेरी फैमिली में किसी को दिखता नहीं है। बट यस, अगर मैं उनको बोलूंगा कभी लाइफ में तो उनको नेगेटिव लगेगा कि ये क्यों बोल रहे हैं, यू नो। बट अगेन मेंटल हेल्थ ना, मुझे ऐसा लगता है कि 90% आज भी पेरेंट्स का रोल है बच्चों को हेल्प करने में, बेटर करने में। अगर पीयर प्रेशर ही छोड़ दिया जाए ना, तो आधे बच्चों का तो वैसे मेंटल हेल्थ बेटर हो जाता है। यस, तो इसमें जब हम आप बात करो ना, जैसे पेरेंट, सिर्फ पेरेंट ही मैं इसको ऐसे करूंगी कि पेरेंट है, सोसाइटी है, सो ये सारी सोसाइटी जो एनवायरनमेंट है सबका है। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बच्चा पेरेंट्स से ही सीखना शुरू करता है। तो उसकी लर्निंग 2 तरह की होती है, एक तो जो उसको सिखाई जाती है और दूसरी वो जो देख के सीखता है। Right. तो वो ऑब्जर्व अपने पेरेंट को भी करता है। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट में डिस्कनेक्ट है तो वो उसको जीता रहता है, चाहे वो बोल नहीं पाता या उसको उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन उसका जो पैसिव माइंड है ना, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो गेन तो कर रहा है वो सारी चीजें। तो वो हमें कई बार बचपन में नजर भी नहीं आती है। वो नजर आती है जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लग जाता है, जब वो इंडिपेंडेंट बनने लगता है अपने में भी करियर में, तब वो रियलाइज करता है कुछ चीजें, या कुछ उसके सामने आता है तो रियलाइज करता है कि ये वो कोप अप नहीं कर पाएगा। फिर उसको समझ में आता है दिस इज बिकॉज कि कहीं ना कहीं वो वीक रह गया अपने पेरेंट्स की वजह से, या मे बी सोसाइटी की वजह से, या सोसाइटी ने उसको उतना सपोर्ट नहीं किया वो जो जब उसको बचपन में करना चाहिए था। तो इसीलिए जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, अगर वो हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए, चीजें तो पहले भी थी, जो हम बात करते हैं एम्पैथी की, अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझने की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, ये सारी चीजें थी पहले भी हम खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे, पिटाई विटाई भी हो जाती थी, कान भी खींचे जाते थे, तब हम डरते थे। अगर हमने घर में बता दिया तो वो कहेंगे तुमने कोई शरारत की होगी, और स्कूल में बताया कि पेरेंट्स को नहीं बताया, या बताया तो और 2 थप्पड़ लगेंगे। तो हमारा, लेकिन उससे हमने कभी भी मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड या इस तरह की चीजें नहीं आई कि मेरे को सुसाइडल कुछ वो आ रहा है, या जो अब जो नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आने लगे ना कि मुझे क्यों मारा या मेरे को हाथ भी क्यों लगा दिया। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पर ही हो जाता है कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे जो हैं इनको सिखाने के लिए कई बार हमें साम दाम भेद सब नीति अपनानी पड़ती है।
तो हमें मिलके काम करना है। अगर स्कूल कुछ शेयर कर रहा है बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हमें नहीं पता बच्चा किस मीडिया से कहाँ से क्या सीख रहा है। Right. कोई स्कूल अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं सिखाता, कोई स्कूल गलत नहीं सिखाता, कोई पेरेंट अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाता, तो कहीं ना कहीं पर बच्चा तो फिर भी सीख रहा है, क्योंकि बच्चा एक्सपोज्ड है बहुत सारी चीजों में। Right. तो और वो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। Right. तो हमारा कंट्रोल जिस चीज पे वो ये है कि हम अपनी तरफ से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, Right. उसके साथ डिस्कस करें, तो वो अपने आप को ओपन करे और वो बताए उसने क्या सुना, क्या अंडरस्टैंड करें बच्चों को, अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंडिंग से ही रिस्पॉन्ड करें। मुझे ना अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया। ऑफ कोर्स हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे, बट आपने अभी एक टॉपिक के ऊपर बात करी सस्टेनेबल, कि हम एडुकेट कर रहे हैं लोगों को बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आपके स्कूल में थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते होंगे, राइट, जो स्कूल लेवल पे होते होंगे, और उसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर निकलते होंगे, जिनको आप आई एम श्योर कोई ट्रॉफी देते होंगे। सो मेरे माइंड में एक थॉट आया अभी बैठे बैठे, मतलब जस्ट अ रैंडम थॉट, कि वी एज अ रोबो चैम्प्स विल स्पॉन्सर ऑल द प्राइजेस थ्रू आउट द ईयर। आप साल में चाहे 10 कंपटीशन करो या 20 कंपटीशन करो, वो जितने भी प्राइजेस होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। आपको ट्रॉफी बनाने की जरूरत ही नहीं है कोई, बट हम स्पॉन्सर क्या करेंगे, पेड़, प्लांट, राइट। हम स्कूल में ही वो प्लांट प्लेस करेंगे पूरा प्रॉपर बोर्ड के साथ कि बच्चे ने ये कंपटीशन में ये प्राइज फर्स्ट प्राइज स्कोर किया, तो इसलिए ये प्लांट हमने लगाया गया। जस्ट इमेजिन आफ्टर 30 इयर्स और 20 इयर्स जब वो बच्चा स्कूल में आएगा, वो देखेगा अच्छा मैंने उस टाइम बचपन में ये कंपटीशन जीता था, ये पेड़ मेरे नाम पे लगा हुआ है यहाँ पे। द मेमोरी विल रिमेन सेम। मुझे लगता है कि जो ट्रॉफीज मिलती हैं वो कहीं ना कहीं अगेन प्लास्टिक की ट्रॉफीज हैं, और हम एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं और हम सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे हैं। तो मतलब अगर आपको लगे ये आइडिया आपके स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल, जहाँ पे it's really a very good thought which has come written up, right? And it's very good, and it's actually better, like it is connected with this topic also, mental well-being. तो कहीं ना ग्रीन सिंपैथी जो है ये, हाँ। और हमारा मेरा स्कूल तो वैसे भी मैं बताऊं, everyone loves to be there. अब एक बात सोचो ना, आपने फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को वो प्राइज दिया और उसने वो खुद प्लांट किया, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो स्कूल में है कि उसको नरिश करना है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट कनेक्शन भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ, वैसे मतलब एज अ कॉम्पिटिटिव दिस थिंग, आपका ये बहुत अच्छा थॉट लगा मुझे, बट एज अ स्कूल हम ये करते भी हैं, राइट। हम करते हैं, हम बच्चों को अभी तो थोड़ा हमारा मतलब हो गया हमारा, तो हमने जब शुरू किया था ना, वी हैव गिवन एन एरिया क्लास वाइज कि आप अपने अपने प्लांट यहाँ लगाओ, और इसको देखो कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप सीडलिंग से बिल्कुल मतलब उससे करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। और बट ये इसके साथ ये और एसोसिएट करना कि उसने ये अवार्ड जीता, एंड दैट मेमोरी, दैट थिंग इज रियली वंडरफुल, और हमेशा वो लगा रहे वहां पे, यू नो, साइन बोर्ड, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कनेक्शन of the child with the school is very important. Absolutely. अभी मुझे थोड़ा ऐसे फील होने लगा कि धीरे धीरे वो कनेक्ट एलुमनाइज का थोड़ा कम हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एलुमनाइज का कनेक्ट शुरू किया डिफरेंटली। एलुमनाई मीट तो सब करते हैं, तो मैंने एलुमनाइज एज पार्टनर्स ले लिया इन एजुकेशन सिस्टम। सो आई इनवाइट देम, दे कम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि मेरे अभी इतने साल हो गए हैं, 20-25 साल से मेरे बच्चे बहुत सेटल्ड हैं, बहुत हर जगह पे। सो चाहे वो पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट वाली काउंसिल हो, या प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल हो, चाहे वो अब्रॉड में सेटल्ड हो, वेदर डेवलपिंग द टीचर्स एंड गिविंग, और इट्स अबाउट जो स्कूल के पास कितनी पावर है, बहुत पावर है। तो वो मैं उनको बुलाती हूँ और वो ना इंटरेक्ट करते हैं, मैं उनको ओपन ग्राउंड देती हूँ। उसमें मैं नहीं होती, मेरी टीचर्स नहीं होती, मैं कहा ये बच्चे हैं, ये तुम्हारा स्कूल है, जिस भी क्लास में, आई जस्ट वांट यू टू गो वॉक इनटू द क्लास एंड स्पीक विद द चिल्ड्रन। सो उससे क्या होगा कि दे आर ओपन टू यू, बिकॉज एक तो तुम्हारे अंदर भी फीलिंग है कि मैं यहाँ से इधर आया हूँ, और बच्चों को मोर कनेक्टिविटी, द फीलिंग ऑफ मोर कनेक्टिविटी कि मैं ये तो यहीं से गए हैं, अच्छा ये इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो जो किसी भी बच्चे में अगर ये फीलिंग है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो टैलेंट सब बच्चे में, वो इमोशंस ना हमेशा कनेक्टेड रहता है। स्टिल आई रिमेंबर अभी 1-1.5 साल पहले आई वाज फीलिंग लो, मैंने अपने वाइस चांसलर को मैसेज किया यूनिवर्सिटी के कि आई वांट टू कम बैक टू हॉस्टल एंड स्टे बैक,
मुझे That's एक दिन के लिए सेम रूम में रहना है जहाँ पे मैंने 4 साल स्पेंड किए हैं अपने लाइफ के, यू नो, बिकॉज दैट कनेक्शन इज ऑलवेज देयर, वो मेमोरीज लाइफ टाइम रहती है अगेन लाइफ एंड टाइम पे। रहती है ना, लेकिन स्कूल Yeah. एक ऐसी जगह है जो हम कभी नहीं भूल पाते। ट्रू ट्रू। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15 to 18 years 16 years we spend in आपके school। साथ डिस्कस करते करते मेरे तो- कई थॉट्स आए हैं अभी माइंड में, यू नो, स्कूल को लेके। मेरे पूरी पिक्चर, मेरे खुद की स्कूल Yeah. भी घूम गई कि Yeah. मैंने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ मैं पहुंची हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर कि कैसे क्लास में टीचर मुझे बाहर खड़ा करते थे, यू नो, रेज योर और उसमें हैंड्स। हमें कितनी शर्म Yeah. आती थी। Yeah. आजकल बच्चे ना बहाना ढूंढते हैं बाहर बाहर निकलने का, निकलने ताकि का। वो बाहर थोड़ा घूम कर आ घूम कर, जाए। तो उनको एक मौका चाहिए। Right. सो आई एम श्योर ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बट Yeah. आई डोंट वांट कि हम ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट रिलीज करें कि, यू नो, लोग उसको देखें ही ना। आई वांट एवरीवन शुड वॉच एंड अंडरस्टैंड कि हमने शायद जो बात करी है हमें नहीं रियलाइजेशन होगी, बट बहुत लोगों को ये रियलाइज होगा सुनने के बाद कि ये वो बात कर रहे हैं जो हम सुनना चाहते थे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट एक इंसान को क्रिएट हो जाए लाइफ में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस योर टाइम, और मजा आया आपके साथ बात करने का। या द सेम हियर। mental और health. मुझे लग रहा है मतलब मैं मतलब बिल्कुल दिल से हमने बातें Yeah, की हैं, जो भी exactly. की हैं, और बहुत जो हम खुद करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमने शेयर किया है। Yeah. होप कि सब जो भी इसको देखेंगे Yeah, और yeah. सुनेंगे, कुछ हमें भी सजेशंस भेजें कि हम और 100%. कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और Absolutely. मेंटल वेलबींग पे स्पेशली Yeah, हम कैसे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, right. और कैसे हम सबने मिलकर हमारे बच्चों को संभालना है, क्योंकि बेसिकली तो धरोहर है वो हमारी, बिल्कुल फ्यूचर है वो फ्यूचर हमारा। है वो हमारा। तो हमें उनको संभालना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड चीजें हैं, तो जिसमें हमने उनको, वो कहते हैं ना भंवर है, वो भंवर Right. के अंदर हैं, तो हमें उनसे हमें ही निकालना है। तो वी हैव टू सपोर्ट देम इन एवरी अदर मैनर व्हाटएवर वी कैन Right, डू। right. थैंक यू Thank you so much, ma'am. Thank